السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کابینہ نے سول ایویشن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی آئندہ 2 سے 3 روز میں تعینات کر دیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی کی بطور قائم مقام ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی تعیناتی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر بن اللہ وفاقی حکومت پر برہم کہتے ہیں، وفاقی حکومت کے پاس سیکرٹری کو ڈی جی کا ایڈیشنل چارج دینے کا اختیار نہیں تو کس قانون کے تحت سیکرٹری ایویشن کو ڈی جی کا اختیار دیا گیا؟ قومی انٹرنیشنل ایئر لائن کی رضاکارانہ علیحدگی اسکیم آج وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ نے منصوبے کے لیے وفاقی حکومت سے 12 ارب روپے سے زائد رقم مانگ لی ہے۔ منصوبے کے مطابق تقریباً 3000 ملازمین کو رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کی پیشکش کی جائے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق کسی ملازم کو زبردستی نہیں نکالا جا رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا میں اضافے کے لیے نیب کی اپیل پر سماعت۔ عدالت کا کہنا ہے کہ نواز شریف بذریعہ اشتہار طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ دفتر خارجہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ تسلی کرنی ہے کہ نواز شریف کو حکم نامے سے آگاہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ورلڈ اکنامک فورم کا وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف کرتے ہوئے 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کورونا سے بچاؤ کی بہترین حکمت عملی کے باعث پاکستان سب پر سبقت لے گیا اور کورونا کی وبا پر قابو پا کر سب سے کم معاشی نقصان اٹھانے والا ملک بن گیا۔ کورونا کی پہلی لہر کے دوران پاکستان کو دنیا میں سب سے کم اقتصادی جھٹکا لگا۔ فورم میں دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کار، صنعت کار اور بزنس مین شریک ہوں گے۔ وزیر توانائی عمر ایوب متبادل توانائی کی پالیسی اور ثانیہ نشتر احساس ایمرجنسی پروگرام سے کروڑوں خاندانوں کی مدد پر بات کریں گے۔ پنجاب میں لوٹی ہوئی دولت کی ریکوری میں بڑی کامیابی مل گئی۔ بیوروکریسی اور ٹھیکیداروں سے 25 ارب روپے ریکور کرا دیے۔ پنجاب حکومت نے سرکار کا لوٹا گیا اربوں روپیہ ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دیا۔ بڑے بڑے سرکاری افسران کک بیکس اور کرپشن میں ملوث نکلے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب خاور بخاری کے انکشافات کہتے ہیں ریکور ہونے والے 25 ارب روپے ملکی خزانے میں واپس جمع کرا دی گئے۔ رقم صرف 14 ماہ کے اندر ریکور ہوئی۔ اجلاس منسوخ نہ ہوتے تو ریکوری 40 ارب تک بھی ہو سکتی تھی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ریپڈ کورونا ٹیسٹ کٹ کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق کورونا ریپڈ ٹیسٹ کٹ 20 منٹ میں رزلٹ دے گی۔ ریپڈ ٹیسٹ کٹ کی ابتدائی فیس 2000 روپے تک ہوگی۔ سربراہ ڈرپ ڈاکٹر عاصم نے کورونا ٹیسٹ کٹ رجسٹریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، کورونا ریپڈ ٹیسٹ کٹ غیر ملکی فارما کمپنی نے رجسٹر کرائی۔ یہ ٹیسٹ کٹ غیر ملکی دوا ساز کمپنی درآمد کرے گی۔ ریپڈ ٹیسٹ کٹ کی رجسٹریشن بڑی کامیابی ہے۔ اس ٹیسٹ کٹ سے کورونا کی جلد تشخیص ممکن ہوگی اور کورونا کی جلد تشخیص سے بروقت علاج ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پنجاب میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں لاہور میں چائنا سینٹر سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر اتفاق ہوا اور سیڈ ڈیولپمنٹ زرعی شعبے سے متعلقہ ریسرچ کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ سیڈ ڈیولپمنٹ زرعی تحقیقاتی مقاصد کے لیے 13,000 ایکڑ زمین استعمال ہوگی۔ سی پیک ٹاور میں صنعت کاروں کے لیے انفارمیشن ڈیسک بنیں گی اور چینی انڈسٹریز سے متعلق معلومات ایک ہی چھت تلے میسر ہوگی۔ سابق نیول چیف ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری انتقال کر گئے۔ سابق امیر البحر کے اہل خانہ نے فصیح بخاری کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سابق نیول چیف کی نماز جنازہ کل چک شہزاد میں ادا کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری مئی 1997 سے اکتوبر 1999 تک پاکستان نیوی کے سربراہ رہے اور پھر اکتوبر 2011 سے لے کر مئی 2013 تک قومی احتساب بیورو کے سربراہ بھی رہے۔ شہر عقائد کے مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر کچرا پھینکنے پر 7 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس نے ایف آئی آر میں نامزد 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سڑک پر کچرا پھینکنے کے الزام میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے تحت 10 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق منگو پیر اور کورنگی انڈسٹریل ایریا سے ہے۔ رضویہ سوسائٹی بورڈ بیسن سے تعلق رکھنے والا شہری بھی ان ملزمان میں شامل ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے تمام ملزمان کو سزا کے طور پر جیل بھیجا جائے گا۔ کچرا پھینکنے والے کی نشاندہی کرنے پر 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کو بالآخر اختیارات منتقلی کی منظوری دے دی۔ گزشتہ روز جنرل سروس ایڈمنسٹریشن کی سربراہ ایملی مرفی کی جانب سے لکھے گئے خط میں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کیا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اقتدار کی باضابطہ منتقلی کا عمل شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ حکومت سازی کے لیے لاکھوں ڈالر حکومتی فنڈ سے استعمال کر سکے گی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اقتدار کی پرامن منتقلی کو خوشائن قرار دیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی فخر زمان کا کووڈ-19 سمیت دیگر ٹیسٹ کلیئر آنے پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اوپننگ بیٹسمین فخر زمان قومی کرکٹ اسکواڈ کے نیوزی لینڈ روانگی سے چند گھنٹے قبل بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ دورہ نیوزی لینڈ سے باہر ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق فخر زمان کا کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آیا ہے، جبکہ بخار سے متعلقہ کرائے گئے دیگر ٹیسٹ بھی کلیئر آئے ہیں۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آنے کے بعد فخر زمان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ ہوا تھا اور طویل مسافت کے بعد کرائسٹ چرچ پہنچ چکا ہے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی سے 3 سال میں 300 ارب کا ریلیف بجلی صارفین کو ملے گا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ نون لیگی دور میں بجلی کی پیداوار کی گئی مگر لوڈ شیڈنگ مکمل ختم نہیں ہوئی۔ لیگی دور میں بجلی کے ترسیلی نظام میں سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی سے 3 سال میں 300 ارب کا ریلیف بجلی صارفین کو ملے گا۔ معاہدوں پر نظر ثانی سے بجلی 1 روپے 40 پیسے فی یونٹ سستی ہوگی۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی کے سربراہ اسد عمر کی توانائی سیکٹر پر اہم بریفنگ کے دوران اسد عمر کا کہنا تھا کہ سابقہ دور میں بجلی گھر تو لگائے گئے مگر طلب تھی ہی نہیں۔ سرکولر ڈیٹ اور ناقص ترسیلی نظام ورثے میں ملا۔ حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی ماہانہ بنیاد پر رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ترسیلی نظام کی بہتری پر 47 ارب روپے خرچ کیے۔ حکومت نے ترسیلی نظام کی صلاحیت میں 4000 میگا واٹ اضافہ کیا۔ کبھی نہیں کہا کہ دسمبر 2020 تک گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا۔ عمر ایوب کو نہ جانے کون یہ کہتا تھا کہ گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا۔ حکومت میں آتے ہی بجلی 12 روپے فی یونٹ مہنگی کرتے تو سرکولر ڈیٹ ختم ہوتا۔ سالانہ 1000 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں خرچ ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات و جنگلات ناصر حسین شاہ کا کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی سے خطاب۔ کہتے ہیں ہماری پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر کراچی پریس کلب کو 2.5 کروڑ کی گرانٹ دینے آئے ہیں۔ صوبائی وزیر سید ناصر علی شاہ کا کراچی پریس کلب کا دورہ، جس میں انہوں نے کراچی پریس کلب کو 2.5 کروڑ کا چیک کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فاران کو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ ہماری میڈیا مالکان سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ لوگوں کو نہ بے روزگار کریں اور آپ کی تنخواہ ٹائم پر دیتے رہیں۔ کچھ عرصے سے تو حالات فائنینشیل بڑے کرائسس تھے، کچھ ایشوز سامنے آئے، لیکن اس دفعہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے ایفرٹس لیے اور پھر جا کے یہ ممکن ہوا کہ آج ہم یہ چیکس جو ہے 2.5 کروڑ روپے کا آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں تاکہ یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں۔ میری ایک گزارش ضرور ہوگی کہ جو آپ کے ممبرز ہیں ان کا لائف انشورنس یا ہیلتھ انشورنس آپ ضرور اس میں سے کریں تاکہ وہ ایک اچھا جاتا ہے اور اس میں ہم بھی اپنا رول ادا کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے، شروع سے ہی آپ کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا، اور اس میں یہاں پہ بی بی شہید بھی آتی ہوئی، اور اب ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس دن وزٹ کیا تھا، تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے اس میں بھی ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے اور ہمیں ہمیشہ سپورٹو ہوگی۔ اور اگر آپ موازنہ کر لیں پورے پاکستان میں تو سب سے زیادہ جو سپورٹ ملتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی اپنے صحافی بھائیوں کو یا جو بھی ادارے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ اور ہم نے جو بہت بڑی لائبلٹی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی اس کو کلیئر کیا، اور اس میں بھی سب کو جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان سے یہ کہا کہ وہ آپ جو ان کے پاس امپلائیز ہیں ان کی سیلری بھی دیں، اور وہ جو حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جاب سے باہر کیا جا رہا تھا وہ بھی نہ کریں۔
हमारी कोशिश है कि आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाली जाए, मगर उसमें कुछ कानूनी मसाइल लाहक आ रहे हैं। किसी भी वफाकी ऑर्डिनेंस को नहीं मानती। जज़ायर पे तामीरात तब तक नहीं होंगी जब तक कि वहाँ के माहीगीर ना चाहें। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़, कराची। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का मकबूजा कश्मीर पर होने वाले भारतीय हमलों पर रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं पाकिस्तान भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करता रहेगा। भारतीय हमलों के हवाले से गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी, मनसूबाबंदी, मुआवनत, माली आनत और अमल दरामद के नाकाबिल तरदीद सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर आलमी बरादरी के सामने रखा है। जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए डोजियर के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को तेज कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक और नाकाम कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय झूठा बयानिया मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को भारत के ऐसे इक़दामात के हवाले से पहले ही से आगाह कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे इक़दामात उठा सकता है। जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करता रहेगा। पाकिस्तान भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी को गुमराह नहीं होने देगा। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को पाकिस्तान के पेश करदा डोजियर पर एक्शन लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी, जबकि सुबह सिंध में आज से कारोबार 6 बजे तक बंद करने के अहकामात को ताजिर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात को कराची के ताजिर बरादरी ने मानने से इनकार कर दिया है। ताजिर बरादरी ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि 6 बजे दुकानें खोलना काबिल अमल नहीं, सुबह 10 ता शाम 8 बजे कारोबार करने की इजाजत दी जाए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि कारोबारी औकात को सुबह 10 से रात 8 बजे तक किए जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिर बरादरी सख्त हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा होकर हुकूमत से भरपूर ताउन कर रही है। माशी बदहाली के बाइस पिछले लॉकडाउन से भी बुरी सूरत हाल है। ताजरों से रोजगार का हक ना छीना जाए। वाज़ेह रहे कि महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तमाम तिजारती मराकज़ जुम्मे और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जुम्मे और इतवार सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। महकमा दाखिला की जानिब से नई पाबंदियां 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी निजी दफातर पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है और जुर्माना भी होगा। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार को जाम शहादत नोश किए 5 बरस बीत गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम मुख्तियार ने PAF अकेडमी रिसालपुर में फाइटर जेट पायलट की तरबियत हासिल की और 24 नवंबर को मरियम मुख्तियार तरबियती परवाज पर रवाना हुई। तहम मियांवाली के करीब उनका तैयारा टेक्निकली खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया था। 24 मई 1992 को कराची में पैदा होने वाली मरियम ने इब्तिदाई तालीम मलीर कैंट के स्कूल और कॉलेज से हासिल की, जबकि 6 मई 2011 में पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया और 24 सितंबर 2014 को एयरफोर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। कौम की काबिल फक्र बेटी ने 2011 में फिजाइया के 132वें GD पायलट कोर्स में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद मरियम मुख्तियार ने PAF अकेडमी रिसालपुर में फाइटर जेट पायलट की तरबियत हासिल की थी। 24 नवंबर 2015 को फाइटिंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मामूल की मश्क पर रवाना हुई। मियांवाली की फिजाओं में परवाज करते हुए इंजन में अचानक आग भड़क उठी। जांबाज पायलट और इंस्ट्रक्टर ने इजेक्ट करने के बजाय आबादी से दूर जाने का फैसला किया, मगर वक्त कम होने के बाइस जहाज क्रैश हो गया। महकमा दाखिला सिंध ने इंडोर शादी हॉल्स, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स थिएटर पर पाबंदी आयद कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट आउटडोर डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग रात 10 बजे तक होगी, जबकि कारोबारी औकात सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होंगे। तमाम तिजारती मराकज़ जुम्मे और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जुम्मे और इतवार को सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी अशिया की दुकानें खुलेंगी। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि इंडोर सिनेमा, थिएटर, जिम, स्पोर्ट्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 50% सरकारी मुलाजिम घरों से काम करेंगे। सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजमी होगा। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आयद करदा पाबंदियां 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। महकमा सिंध के मुताबिक सिर्फ आउटडोर शादियों की इजाजत होगी और उनमें 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी की तकरीब की टाइमिंग 9 बजे तक होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इजला में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत ने 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था, जबकि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होगी और हालात बेहतर होने पर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोले जाएंगे।
पंजाब के जिला झंग में ज्यादती के वाकयात की रोकथाम और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का पहला विमेन स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। झंग में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 माह की खुसूसी ट्रेनिंग के बाद खवातीन पुलिस का स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जो सिर्फ शहर तक ही महदूद रहेगा। ये खवातीन मोटरसाइकिल सवार बाइक दौड़ाकर हदफ तक पहुंचना ही नहीं बल्कि दूर से हदफ पर वार करना भी जानती हैं। RPO राजा रिफत मुख्तार का कहना है कि खवातीन को अमूमन अपने मसाइल मर्द पुलिस वालों को बताने में मुश्किल पेश आती है। ताहम अब जब ये खवातीन पुलिस एहलकार गश्त पर मौजूद होंगी तो वो बआसानी इन्हें मसला बता सकेंगी। उनका मजीद कहना था कि फिल वक्त सिवाय झंग के खवातीन स्पेशल स्क्वाड पंजाब के किसी इलाके में नहीं है। 2 माह की ट्रेनिंग के दौरान खवातीन पुलिस एहलकारों को असले का इस्तेमाल बखूबी सिखाया गया है ताकि वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी हिफाजत भी कर सकें। लेडी पुलिस का अज़म है कि वुमेन सेफ्टी स्क्वाड के क़याम से झंग की खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला अबर आलूद और कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी कायद में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मेट ऑफिस के मुताबिक सूबे के बेशतर बलाई इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और कराची में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के बेशतर बलाई वस्ती इलाकों में भी आज मतला अबर आलूद रहेगा। इस दौरान खित्ता पोठोहार, बालाई वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। मरी और गुलियात में बुध को बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, पशीन, ज़ियारत, चमन, चागी, दालबंदेन, गवादर, मकरान, कसदार, अवारान, तुरबत, पंजगोर, लजबेला और कलात में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि दीर, चित्राल, मालाकंड, सवाद, बुनीर, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट, बन्नू, DI खान, वजीरिस्तान और करम एजेंसी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, ताहम बर्फबारी से मकामी आबादी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, जबकि बिजली और फोन का निजाम मुतासिर हुआ है। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठिंडियानी में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। 1 फुट बर्फ पड़ने से मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। मरी से एबटाबाद आने वाली शारा से बर्फ हटाने का काम जारी है। सदर ट्रंप ने कड़वा घूंट पीते हुए बाइडन इंतजामिया को बिलाखिर इख्तियारात मुंतकली की मंजूरी दे दी, जिसके बाद कई हफ्तों से अमरीकी सदर की जानिब से जारी टाल मटोल अंजाम को पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराह एमिली मॉर्फी की जानिब से लिखे गए खत में 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह किया गया कि ट्रंप इंतजामिया इख्तिदार की बाज़ाब्ता मुंतकली का अमल शुरू करने के लिए तैयार है। एमिली मॉर्फी की जानिब से लिखे गए खत के बाद अब बाइडन इंतजामिया हुकूमत साजी के लिए लाखों डॉलर हुकूमती फंड से इस्तेमाल कर सकेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को फतह करार दिए जाने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त तस्लीम किए जाने के हवाले से ये पहला कदम है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराही एमिली मॉर्फी के खत के मुताबिक फैसला बगैर किसी दबाव या खौफ के कानून और दस्तयाब हकाइक को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मॉर्फी का कहना है कि इस मामले के पीछे मुझ पर व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव हुक्काम या फिर GSA में काम करने वालों की जानिब से बराह रास्त या बिल वास्ता किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था और इस बात की वजाहत जरूरी है कि मेरे फैसले में ताखीर के लिए मुझे किसी तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली को खुश आइन करार दिया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि कानूनी जंग जारी रहेगी, मगर इंतजामिया से ये कह दिया कि जिस चीज की जरूरत है इसे अंजाम दिया जाए। सदर ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली मंजूरी पर अमरीकी टीवी का कहना है कि खत सदर ट्रंप की शिकस्त तस्लीम किए जाने का पहला कदम है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ने ये इकदाम ऐसे वक्त किया है जब अहम रियासत मिशिगन ने भी जो बाइडन की फतह को तौसीक कर दी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि नतीजे को रोका जाए, मगर ऐसा ना हो सका। दुनिया भर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इतनी ही तेज रफ्तारी से साइंसदान इसके खिलाफ वैक्सीन की तैयारी में भी मसरूफ हैं। इस सिलसिले में अब तक मुतादिद वैक्सीन तजुर्बाती मराहिल में हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में दवासाज कंपनियां और तहकीकाती इदारे कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की दौड़ में शामिल हैं और आलमी सतह पर हजारों अफराद पर क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। आलमी वबा ने अब तक दुनिया में 5,87,00,000 से जायद अफराद को मुतासिर किया है, जबकि 13,90,000 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त मजमूई तौर पर इंसानों में 54 वैक्सीन की ट्रायल्स जारी किए जा चुके हैं। वैक्सीन के ट्रायल्स को मराहिल से गुजरते हुए अब तक दुनिया में इसकी तैयारी किस सतह पर है, बरतानवी खबर रसां इदारे और मोतबर अमरीकी अखबार से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वैक्सीन के ट्रायल्स का आगाज रवां बरस मार्च में हुआ और अब तक 13 वैक्सीन टेस्टिंग के फाइनल मराहिल तक पहुंच चुकी हैं। खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन जिस्म में बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करके कोरोना की वबा को मजीद फैलने से रोक सकती है, लेकिन ये बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं कर सकती। वैक्सीन के पहले ट्रायल में पहला मरहला प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का है, जिसमें साइंसदान नई वैक्सीन का खलियों पर तजुर्बा करते हैं और जानवरों पर फिर इसका तजुर्बा करके देखा जाता है। और इसका क्या रद्द अमल है, इस वक्त दुनिया भर में 83 वैक्सीन पहले मराहिल में मौजूद हैं। फेज 1 ट्रायल में माहिरीन महदूद तादाद में लोगों को वैक्सीन की आजमाइश खुराक देकर देखते हैं कि ये महफूज है या नहीं और क्या उसका निजाम मुदाफियत पर कोई असर होता है या नहीं। फेज 2 ट्रायल्स मरहले में ये वैक्सीन सैकड़ों अफराद को उनकी उम्र के हिसाब से ग्रुप्स बनाकर दी जाती है। इस मरहले से वैक्सीन के महफूज होने और इसके निजाम मुदाफियत पर मौसर या गैर मौसर होने के बारे में मजीद मालूमात हासिल होती है। फेज 3 ट्रायल मरहले में ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी मौसर है। साइंसदान हजारों अफराद पर वैक्सीन का तजुर्बा करते हैं और ये ट्रायल्स इस बात का तयन करते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाती है या नहीं। वैक्सीन की मंजूरी के लिए वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए आखिरी मराहिल ये है कि जिसमें किसी मुल्क के रेगुलेटर ट्रायल्स का नताइज का जायजा लेते हैं और फैसला करते हैं कि वैक्सीन को मंजूर किया जाए या नहीं। ताहम वबा के दौरान किसी वैक्सीन को बाकायदा मंजूरी से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। जराये के मुताबिक अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर और इसकी शराकत दार कंपनी बायोएनटेक ने 18 नवंबर को फाइनल स्टेज ट्रायल का डेटा शेयर किया, जिसके मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 95% मौसर है। ये पहली कंपनियां हैं जिन्होंने फेज 3 का डेटा शाया किया है और अमेरिका में इस वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवासाज कंपनियां एस्ट्राजेनेका की तरफ से तैयार की गई वैक्सीन 70.4% अफराद को कोरोना वायरस का शिकार होने से बचा सकती हैं। डेटा में देखा गया है कि इसकी कम खुराक के इस्तेमाल से 90% अफराद को कोरोना से महफूज रखा जा सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वो फौरी तौर पर दुनिया भर में रेगुलेटर्स को मंजूरी के लिए डेटा मुहैया करेंगी। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने 16 नवंबर को अबूरी डेटा जारी किया और कहा कि इसकी वैक्सीन 94.5% मौसर है। मॉडर्ना जल्दी मंजूरी के लिए वैक्सीन का डेटा मुहैया करेगी और अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला दिसंबर में मुतवक्को है। रूस में बनाई जाने वाली स्पुतनिक 5 वैक्सीन की जानिब से 11 नवंबर को जारी किए गए फाइनल स्टेज डेटा के मुताबिक ये वैक्सीन 92% मौसर है। रूस में ये वैक्सीन 10,000 अफराद को दी जा चुकी है। चीन ने जुलाई में वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी, जिनमें चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप, किनसियोन बायोलॉजिक्स और सैनोवैक बायोटेक की वैक्सीन शामिल हैं। सैनोवैक ने 18 नवंबर को कहा था कि दरमियानी स्टेज के ट्रायल से जाहिर होता है कि इसकी कोरोना वैक्सीन ने तेजी से मुदाफती ताउन किया है, लेकिन कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद में एंटीबॉडीज पैदा करने में इसका रिस्पांस बहुत कम था। फाइजर और बायोएनटेक की तरफ से मुतारिफ कराई गई वैक्सीन को 6 माह तक स्टोर किया जा सकेगा और इसके लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत चाहिए होगा, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन -20 डिग्री दर्जा हरारत तक स्टोर की जा सकेगी, जो आमतौर पर फ्रीजर का दर्जा हरारत होता है और इसे भी 6 माह तक स्टोर किया जा सकेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आम फ्रिज की दर्जा हरारत पर स्टोर किया जा सकेगा। इस तरह रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी फ्रिज के दर्जा हरारत में रखी जा सकती है, यानी उन वैक्सीन को दुनिया की किसी भी कोने में पहुंचाना आसान होगा। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मौसम गर्मा में मॉडर्ना ने वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $37 बताई थी। जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $10 रखी है। फाइजर ने $20, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने इसकी कीमत तकरीबन $4 बताई है। सबसे बड़ा मसला ये है कि गरीब ममालिक तक वैक्सीन की रसाई किस तरह मुमकिन होगी। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से वैक्सीन बनाने के बाद अमीर ममालिक वैक्सीन की तकसीम को महदूद कर देंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वैक्सीन से मुतालिक रियाज सरबराह कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट के हामी हैं। कोरोना वैक्सीन की फरहमी के लिए जरूरी है। रूस गरीब मुल्कों को वैक्सीन मुहैया करने के लिए तैयार है। इस
इससे कबल चीन ने मुस्तकबिल में तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन की तकसीम के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक वैक्सीन की तैयारी के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म को वैक्सीन ने अहद किया है कि जैसे ही वैक्सीन मुकम्मल की जाए उसे गरीब तर ममालिक में पहुंचाया जाएगा। इससे कबल चीन की वजारत खारजा ने कहा था कि चीन वैक्सीन की तैयारी के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म कोवैक्स में शामिल हो गया है। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि चीन की वैक्सीन तरक्की पजीर ममालिक को तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तारीख की सबसे बड़ी डकैती। इस्लामाबाद के थाने में 4.5 करोड़ रुपए की डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेख मोहम्मद फरीद नामी ज्वेलर की जानिब से इस्लामाबाद के थाने कौसार में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया है कि 3 अफराद ज्वेलरी देखने के बहाने दुकान पर आए और काफी देर तक ज्वेलरी पसंद करने के बाद एकदम मुझ पर पिस्तौल तान ली। ज्वेलरी शॉप के मालिक की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि चोर दुकान से 350 से 400 तोले सोना और 4 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। साहिल ने बताया कि डकैतों ने मुझे और मेरे मुलाजिम फहीम को रेस्ट रूम में बंद किया और फरार हो गए। ज्वेलर मोहम्मद फरीद का कहना था कि एक चोर की उम्र 25 से 30 साल, दूसरे की 35 से 40 और तीसरे की 45 साल के दरमियान थी। सामने आने पर मुल्जिमान की शनाख्त कर सकता हूँ। पुलिस हुकाम का कहना है कि सुपर मार्केट में ज्वेलरी की दुकान पर होने वाली डकैती के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मामले की हर जाविये से तहकीकात की जाएंगी। चीन ने बगैर आदमी के खला में मिशन रवाना किया है, जिसका मकसद चांद से तहकीक के लिए मवाद लाना है। गुज़िश्ता 40 बरस में पहली बार चांद से पत्थर और मवाद लाने के लिए खलाई मिशन को भेजा गया है। चीन के सूबे हयान के जुनूबी जजीरे से वैनशोंग स्पेस सेंटर से खला में चोंग 5 नामी खलाई मिशन भेजा गया। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को चीन के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे रवाना किया गया। इस खलाई मिशन का मकसद चांद से पत्थर और मट्टी लाना है ताकि साइंसदान चांद की तारीख समेत उसकी साख्त और उसकी सतह पर बनने वाले आतिशफिशा के हवाले से जान सकें। इस खलाई मिशन को 3 साल कबल रवाना होना था, ताहम लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के इंजन में खराबी के बाइस इसमें ताखीर हुई। अगर ये खलाई मिशन कामयाब हो गया तो अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा मुल्क होगा जो चांद से पत्थर और दीगर नमूने ला सकेगा। चीन का खलाई मिशन चांद की सतह से ओशन प्रोसेलरम के मकाम से तकरीबन 2 किलो मट्टी और पत्थर लाएगा। साइंस जर्नल नेचर के मुताबिक ये मवाद लावा के बाकी रह जाने वाले पत्थरों पर मुश्तमिल होगा। इस मकाम तक पहले कभी कोई नहीं गया था। चीनी खलाई मिशन नवंबर के आखिरी दिनों में चांद पर उतरेगा। खलाई मिशन एक कमरी दिन में चांद पर ये काम मुकम्मल करेगा। एक कमरी दिन जमीन के 14 दिन पर मुश्तमिल है। नासा के मुताबिक दिसंबर के अवाइल में एक खुसूसी कैप्सूल में चीन के इलाके मंगोलिया में चांद से लाया जाएगा, जिसमें ये मवाद लैंड करेगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा माहिरा खान ने पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन के लिए आवाज़ बुलंद कर ली। कहती हैं अफगान मुहाजिरीन के ख्वाब किसी तरह दूसरों के ख्वाबों से अलहदा नहीं। मजीद इस रिपोर्ट में। माहिरा खान ने फोटोज एंड वीडियोस शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अफगान महाजरीन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। माहिरा खान ने अपने पैगाम में कहा है कि अफगान महाजरीन के ख्वाब किसी तरह दूसरों के ख्वाबों से अलहदा नहीं हैं। अदाकारा ने ख्वाब को वाज़ेह करते हुए कहा कि उनके ख्वाब घर लेना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने अहले खाना के लिए सहूलियात देना है, जबकि इन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमन की जरूरत है। याद रहे, अदाकारा ने लिखा है, अफगानिस्तान 2020 में एजुकेशन के मेयार पर होने वाली बातचीत इन अफगान महाजिरीन के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगी। वाज़ेह रहे कि माहिरा खान ने कहा कि मेरा यकीन है कि तालीम हर मुआशरे की कामयाबी की कुंजी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें 2 पाकिस्तानी खवातीन अदाकारा माहिरा खान और डॉक्टर सानिया निश्तर का नाम भी शामिल किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से हर साल दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त मुरतब जारी की जाती है और अब उन्होंने 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त 2020 की जारी की है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने इस फहरिस्त को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है, जिसमें इल्म, कायदाना सलाहियत, क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी शामिल हैं। दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा माहिरा खान को क्रिएटिविटी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। बाअसर खवातीन की फहरिस्त में वजीर आजम की मावने खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर को नॉलेज यानी इल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अलावा अजी फहरिस्त में फिनलैंड की वजीर आजम सना मरीन समेत मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली 100 खवातीन के नाम भी शामिल किए गए हैं। डॉलर का इंटरबैंक रेट 161 रुपए से तजावुज़ करके 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी रही, जिससे डॉलर की इंटर बैंक रेट 161 रुपए से तजावुज करके 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 32 पैसे के इजाफे से 161 रुपए 4 पैसे की सतह पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 35 पैसे के इजाफे से 161 रुपए 35 पैसे पर बंद हुई। माहिरीन का कहना है कि IMF का तीसरी किस्त के लिए पावर टैरिफ में इजाफे के अलावा दीगर शराइत छोटे मालियत की तिजारती कर्जों की अदायगी के लिए डॉलर की खरीदारी बढ़ने जैसे अवामिल डॉलर के इंटर बैंक रेट पर असरअंदाज हैं। यहाँ से अमर काबिल जिक्र है कि ज़रा मुबादले की मार्केटों में डॉलर की कदर में मजीद इजाफे की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश होने से दरामदी शोबों को भी तलब बढ़ गई है, जो डॉलर की तलब व रसद को गैर मतवाजन कर गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।